آج اسمبلی سے شور اٹھ رہا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے. اپوزیشن کا اصل مقصد احتساب سے بچنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. الزامات کا جواب دینا سیاسی لیڈرشپ کا فرض قرار. حکومت کے خلاف محاذ اپوزیشن ایک ہو گئی. ٹف ٹائم دینے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ. اسلام آباد میں اجلاس. حکومت کی معاشی پالیسیز قومی سلامتی کے لیے خطرہ. عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں ہوگا. اعلامیہ جاری. اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہو جائے گا. ابھی اتحاد ہو گیا. حریف بن گئے. بڑے شہر میں بڑی ملاقات, بڑی سیاسی پیش رفت. آصف زرداری اور شہباز شریف کی بیٹھک گرینڈ الائنس بن گیا. سابق صدر کا بڑا دعویٰ, NRO لینا چاہتے ہیں نہ حکومت دینے کی پوزیشن میں ہے. وزیر اعظم کے پارلیمنٹ آنے پر بات کریں گے. صحافیوں سے گفتگو. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, یہ گیس کے غبارے کی طرح ہے اس وقت, اور پن ہمارے پاس ہے. جب چاہیں گے غبارہ پھٹ جائے گا. میں حیران ہوں کہ ابھی تک نیب نے اس کے جو 3 اہم کردار ہیں, آصف زرداری, فریال تارپور اور مراد علی شاہ, ان کو ابھی تک ریسٹ کیوں نہیں کیا. الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن کا جو آج اجلاس ہوا ہے, ہم تو خیر ہمیشہ سے کہتے تھے کہ یہ اکٹھے ہیں, لیکن آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اکٹھے ہیں. الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن ہو گیا. فواد چودھری نے اپوزیشن اتحاد کو نیا نام دے دیا. حیران ہوں نیب نے آصف علی زرداری, فریال تالپور اور دیگر کو اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا. سندھ حکومت گیس کا غبارہ پن حکومت کے پاس, جب چاہیں پٹاخہ پھوڑ دیں گے. وزیر اطلاعات کا کراچی سے وار. مراد علی شاہ سے استعفے کا مطالبہ. وہ مشورہ دیتے ہیں کہ مراد علی شاہ مستعفی ہو جائیں. مراد علی شاہ تحریک انصاف کے رکن نہیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ہیں. وہ جیالے ہیں, وہ ڈسپلن فالو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا. PTI انتخابی قزاق. مراد علی شاہ PTI رکن نہیں جو مستعفی ہو جائیں. سندھ فتح کرنا وفاقی حکومت کی خواہش ہی رہے گی. ناصر شاہ اور مرتضی وہاب کا طنز. فواد چودھری سیاست کے سلطان راہی, غبارہ پھاڑنے کا شوق پورا کر لیں. قمر زمان کائرہ کا جواب. اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی رد عمل بہت ضروری. پاکستان اور بلوچستان کی خوشحالی لازم و ملزوم ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قومی سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے ملاقات. قومی اسمبلی کے اجلاس میں گرما گرمی. ججز کی تعداد بڑھانے اور صوبائی کوٹے کا بل مسترد. اپوزیشن بفر گئی. اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ. علیمہ خان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی جس کا انہوں نے جرمانہ ادا کر دیا. کیس آل شریف اور زرداری کے لیے مشعل راہ ہے. شریف بے گناہ ہیں تو دستاویزات پیش کر دیں. فیاض الحسن چوہان کی تنقید. پروڈکشن آرڈر جاری. خواجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت. اقدام سے پارلیمانی روایات مضبوط ہوں گی. حمزہ شہباز کا خیر مقدم. دربار اراضی کیس. JIT رپورٹ میں نواز شریف غیر قانونی الاٹمنٹ کے ذمہ دار قرار. سابق وزیر اعظم اور پنجاب حکومت سے 14 روز میں جواب طلب. 1986 میں ہی حجرہ شاہ مقیم اور دربار حافظ جمال کی زمین بھی الاٹ کیے جانے کا انکشاف. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نااہلی کیس میں متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کل معاملہ سنے گا. جہانگیر خان ترین نے ہائیڈ ہاؤس کے لیے زمین خریدی. پیسہ ملک سے باہر بھجوایا. وکیل عدالت کو مطمئن نہ کر سکے. نااہلی کیس میں نظر ثانی اپیل پر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری.
नई गाज डैम से मुतालिक केस की समाअत वफाकी वज़ीर खजाना सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस को डैम की इफ्तिताही तकरीब में जरूर बुलाएंगे। डेस्कॉन कंपनी को ठेका देने का अभी फैसला नहीं हुआ। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बढ़ती हुई आबादी, वसाइल पर दबाव, पूरी कौम को मिलकर जंग लड़ना होगी। 2 बच्चे फी घराना से ही मसले पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मजहबी स्कॉलर्स, सिविल सोसाइटी और हुकूमत इक़दामात करे। चीफ जस्टिस ने केस का फैसला सुना दिया। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का दरामदी कपास पर टैक्स और ड्यूटी खत्म करने का फैसला। फैसले का इत्तलाक 1 फरवरी से 30 जून तक होगा। इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्सेस गैर मुल्की करेंसी में अदा करने की सहूलत देने का भी फैसला। खूनी खेल नामंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में बसंत मनाने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डीसी को नोटिस जारी। 24 जनवरी को जवाब तलब। शादी वाले घर में सफ़े मातम। रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन के घर में आतिशज़दगी। आग में झुलसकर दुल्हन समेत 5 ख़वातीन जाम बहक। जिला अपर कोहिस्तान में शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग। गाड़ी मलबे तले दबने से 8 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। इमदादी काम जारी। वकार खातून को छोड़ने का इल्जाम। गुजरांवाला में लापता लड़की के अहले खाना की सीपीओ ऑफिस में तोड़फोड़, शीशे तोड़ दिए। 18 साला इस्मा तीनों कबल अगवा हुई। मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन का मौक़िफ़। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा किया गया 5 साल का बच्चा बाजियाब। डॉल्फिन फोर्स ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। कराची में एक ही रोज आतिशज़दगी के 2 वाक़यात। कोरंगी क्रीक के करीब फैक्ट्री जल गई। शोलों से बचने की कोशिश में 2 मुलाजिम जख्मी। गुलशन इकबाल में भी फैक्ट्री लपेट में आ गई। लाखों रुपए का नुकसान। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। लियाकताबाद में दिन दिहाड़े घर में लूटमार। 5 डाकू 4 लाख और जेवरात लेकर 9-2-11। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पुलिस का रेस्टोरेंट पर धावा। अमले पर तशद्दुद, तोड़फोड़। सादा कपड़ों में मलबूस 50 एहलकारों की गुंडागर्दी। मुफ्त के खाने का मजा भी उड़ाया। फुटेज दुनिया न्यूज पर। इस्लामाबाद में पुलिस मौके वारदात पर बर वक्त पहुंचकर भी डाकुओं को गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिम एसएचओ से हाथ मिलाकर फरार। एहलकार मामला जाती झगड़ा करार देते रहे। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। डिजिटल लुटेरों की एक और वारदात। सांगिला हिल का रिहायशी 10 लाख रुपए से महरूम। जालसाजों ने बैंक का नुमाइंदा जाहिर करके मालूमात ली, फिर अकाउंट खाली कर दिया। जाली दस्तावेजात और गलत मालूमात देने पर आलमी बैंक ने 19 ममालिक की 274 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान और जर्मनी भी शामिल। फहरिस्त दुनिया न्यूज पर। ब्रेक्जिट मुआहदा मंजूर या मुस्तरद। बरतानवी पार्लियामेंट आज फैसला करेगी। हुकूमत को जिल्लत आमेज शिकस्त होगी। ऑपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन को यकीन। We have no food for you because we have a shutdown. अमेरिका में शटडाउन का 25वां रोज। व्हाइट हाउस के बेशतर स्टाफ की भी छुट्टी। ट्रंप को फुटबॉल टीम की तवाज़ो के लिए फास्ट फूड ऑर्डर पर मंगवाना पड़ गया।
केनिया में दहशतगर्दों का नैरोबी में होटल पर हमला, धमाका और फायरिंग, एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, अल-शबाब ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। ICC वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप एमन, आलिया रियाज, इरम जावेद और अनम अमीन भी शामिल। PSL 4 के टिकट्स की फरोख्त शुरू, पहले मरहले में शारजा और अबू धाबी में बुकिंग होगी। जल्द दुबई, लाहौर और कराची के लिए भी टिकट्स मिलेंगी। लाहौर में मैचेस की सिक्योरिटी इक़दामात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में जायजा। जान चुके आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म ने कौमी सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि आज असम्बली से शोर उठ रहा है कि जमहूरियत खतरे में है। असम्बली में शोर की असल वजह एहतिसाब से बचने के लिए दबाव डालना है। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर आप सियासी लीडर हैं तो इल्ज़ामात का जवाब देना आप पर फ़र्ज है। उनका मजीद क्या कहना था जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आबिद मलिक से। जी आबिद मलिक। जी देखिए, आज वज़ीर आज़म इमरान खान, हेलो जी जी आबिद, हम आपको सुन रहे हैं। आबिद मलिक से बात करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का अहम बयान, आज असेंबली से शोर उठ रहा है कि जमहूरियत खतरे में है। असेंबली में शोर की असल वजह एहतिसाब से बचने के लिए दबाव डालना है। अगर आप सियासी लीडर हैं तो इल्ज़ामात का जवाब देना आप पर फर्ज है। मौजिब इस बयान का ये बना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है। फौजी अदालतों के मामले पर गौर और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई है, जिसके लिए नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। शहबाज शरीफ की दावत पर अपोजिशन जमातों का अहम इजलास, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक, कमेटी तश्कील देने का फैसला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्की मसाइल के हल में नाकाम करार। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी पार्लिमान के अंदर और बाहर लाहेअमल और आइंदा इजलास के एजेंडे के लिए तजावीज़ मुरतब करेगी। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ अब कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी हैं। 5 माह में हुकूमत की नाअहली और बेहिसी सामने आ चुकी है। मिनी बजट की भरपूर मुखालफत की जाएगी। माशी हालात को देख लें कि इस वक्त बेरोजगारी बेपना बढ़ रही है और जो हमारा सरमायाकार है, बाहर से सरमायाकार का आना तो बात की बात है। जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा इन्वेस्टर है वो शाये है, वो खौफजदा है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स वो स्टेगनेंट हैं। डॉलर जो है वो अपना रुपी 30% वो अपना डी वैल्यू हो चुका है। एलामिया के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में रुपए की कदर में 35% कमी से कर्जों के बोझ में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में भी अब तक 40 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हो चुका है। अवाम के आईनी, जमहूरी, मुआशी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंसानी हुकूक की पामाली पर खामोश नहीं रह सकते। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद हो जाएगा। अब इत्तेहाद हो गया। अपोजिशन ने बहुत अच्छा लाए अमल आज तय किया है कि हम ये कमेटी बनाएंगे और हमारा अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन होगा पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर भी इंशाल्लाह। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद को अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ करप्शन करार दे दिया है। वो ये भी कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अवामी पैसे के महंगे खाने पर इकट्ठे हुए। उनका कहना था, हैरानगी है नैब ने जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कराची में मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि सिंध हुकूमत है, गैस का गुब्बारा पिन हुकूमत के पास है, जब चाहेंगे पटाखा फोड़ देंगे। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ये गैस के गुब्बारे की तरह है इस वक्त, और पिन हमारे पास है।
जब चाहेंगे गुब्बारा फट जाएगा। जरदारी साहब की बादशाहत ख़त्म हो चुकी है। सूबा जो ओमनी ग्रुप के पास हमने लीज पे दे दिया हुआ था, वो लीज अब हमने ख़त्म कर दी। मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने इसके जो 3 अहम किरदार हैं, यानी आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। हमारे अपने MPs को तो जोड़े, पीपल्स पार्टी से अपने MPs संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये वक्त की बात होती है, वक्त जो है वो बदल गया है। और दूसरी बात यह है कि वाइसराय तो होता है जो बाहर से आते हैं, मेरा तो अपना सूबा है, मेरा अपना शहर है, मेरा अपने लोग। इस वक्त PTI को कोई क्यों छोड़ेगा। PTI के अलावा चॉइस ही मुल्क में कोई नहीं है। आज अपोजिशन को शहबाज शरीफ साहब ने खाने पे बुलाया, जरदारी साहब भी वहाँ पे खाने पे गए। सुना है बड़ा महंगा खाना था मेरे और आपके पैसों से। और मैंने तो ये सजेस्ट किया है कि उसको अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन नाम रख लें। ठग्स ऑफ पाकिस्तान तो चल ही रही है, इसमें थोड़ा सा इंटरवल चला है। अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन का जो आज इजलास हुआ है खाने के ऊपर, और इन्होंने इजलास भी कभी खाने से काम नहीं किया, वैसे बड़े बड़े खानों पे इजलास करते हैं। वहाँ पर आज जो इजलास हुआ है, मेरे ख्याल में अगर कोई भी अपोजिशन के साथ जो हमदर्दियाँ हैं लोगों की, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि ये हम तो खैर हमेशा से कहते थे कि ये इकट्ठे हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि ये इकट्ठे हैं। फौजी अदालतों का क़याम जो है वो एक गैर मामूली हालात में हुआ था। हम समझते हैं वो एक कामयाब स्ट्रेटजी रही है। अपोजिशन हर मामले को इस बात से जोड़ दे कि हमारे लीडरों के ऊपर करप्शन के केसेस ख़त्म करें, तो वो तो मुमकिन नहीं है। ये जो 5-7 लोग हैं, इनके ऊपर करप्शन में इनको रिलीफ दे दें, ये हर कागज़ साइन करने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी रद्द अमल की ज़रूरत है। अमन के हुसूल के लिए कौम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की खुशहाली बलूचिस्तान की खुशहाली से मुंसलिक है। आर्मी चीफ से तीसरी कौमी सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। सिपा सलार का चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी रद्द अमल की जरूरत पर जोर। पाक फौज कौमी रियासतों के साथ मिलकर मरबूत कौमी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। जनरल कमर जावेद बाजवा। ISPR के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि कौम ने अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी रद्द अमल की जरूरत है। पाकिस्तान की खुशहाली बलूचिस्तान की खुशहाली से मुंसलिक है। शुरका ने सिक्योरिटी वर्कशॉप के इनेकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कौमी तरक्की में अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करेंगे। कौमी एयरलाइन के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा है कि 50 करोड़ रुपए खसारे वाले 7 रूट्स ख़त्म कर दिए हैं। 200 गोश्त मुलाजिमीन को निकाल दिया है, जबकि 1 करोड़ रुपया ओवर टाइम भी ख़त्म कर दिया गया है। PIA का बेहतरी की जानिब सफ़र शुरू हो गया। कौमी एयरलाइन के CEO का दावा, खसारे में चलने वाले रूट बंद, नए मुनाफा बख्श रूट मुतारिफ। खसारे में घिरी PIA को करोड़ों रुपए की बचत। हम मार्च में एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास, जिसमें हम अपनी वे फॉरवर्ड कंक्रीट और ठोस बुनियादों पे करके मार्च में बताएंगे कि आगे 4 से 5 साल में क्या होगा। लेकिन ये मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाला हर दिन, हर माह और हर साल इंशाअल्लाह PIA और इस मुल्क के लिए खुशखबरी लाएगा। वज़ीर हवाबाजी मोहम्मद मियां सोमरो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल अरशद मलिक ने बताया कि घोस्ट और जाली डिग्रियों वाले 650 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। मुफ्त सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। हम किसी को नौकरी से नहीं निकाले, मैंने किसी को नौकरी से नहीं निकाला। हमने उन लोगों को नौकरी से निकाला है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने, जिनके साल से स्टे केसेस थे, और बहुत से ऐसे लोग थे सर जो कि तनख्वाह घर बैठे ले रहे थे। सो हमने सिर्फ उन लोगों को नौकरी से, हमने सुप्रीम कोर्ट ने हमें अहकाम दिए। फेक डिग्री, जाली और जो दूसरे करप्शन के केसेस हैं, वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त नैब के पास ऑलरेडी है। PIA के CEO का एक Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.